Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. इंडिया अक्सर जो है नाम लेके नहीं बुलाता, थोड़ा डिप्लोमेसी इसी को बोलते हैं। पूरी दुनिया खुद ही समझेगी कहाँ कहाँ से टेररिज्म हो रही है। तो पाकिस्तान से जो है जिस तरह अब वही टेररिज्म कर दी, पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द इंडिया बताता है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ही हैं। उसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल आउट किया है एसईओ समिट के अंदर। देखेंगे आपके साथ मिलकर क्या कहा है, उसके ऊपर तफसील से अपना ओपिनियन भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग भी अपना नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन ना बताना भूलिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। Your Excellency, Mr. Kasim Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to meet the extended members of the SCO family today. Let me first appreciate the efforts of the Kazakh chair in taking this initiative to convene us all. I convey the following remarks on behalf of Prime Minister Modi, who could not be here because of the ongoing parliament session in India. I begin. Excellencies, the world is currently experiencing profound shifts driven by geopolitical tensions, geo-economic forces, and geotechnological advancements. They all have sweeping implications. As we look ahead, there are both immediate and systemic challenges and opportunities arising from them. Even as we address those, let us be clear that the world is inexorably moving towards real multipolarity. In such a scenario, the SCO will only become more important. But its true value would depend on how well all of us can cooperate amongst ourselves. We have already had discussions about that within the SCO. The same extends to the extended family. Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO must never waver in its commitment. We cannot have double standards in this regard. When it comes to geoeconomics, the need of the day is to create multiple, reliable, and resilient supply chains. This is an important takeaway from the COVID experience. Make in India can add to the engines of global growth and help democratize the global economy. India is open to partnering with others in capacity building, especially nations of the global south. Technology not only holds great promise in our times, but is increasingly a game changer on both development and security. The digital era needs more trust and transparency. AI and cybersecurity raise crucial issues of their own. At the same time, India has shown that digital public infrastructure and digital financial inclusion can make such a huge difference. Both were discussed during our SCO presidency. But today, they can also expand the scope for international cooperation and involving SCO members and partners. Excellencies, while standing resolute on challenges, it is equally important to actively and collaboratively explore avenues of progress. The current global debate is focused on creating new connectivity linkages that would better serve a rebalanced world. If this is to gather momentum, it requires the joint efforts of many. It must also be respectful of sovereignty and territorial integrity of states and be built on the foundation of non-discriminatory trade and transit rights to neighbors.
For the SCO extended family, we flagged the progress made on Chabahar port recently through a long-term agreement between India and Iran. This not only holds great value to landlocked Central Asian states, but also de-risks commerce between India and Eurasia. While on the region, let me also speak about Afghanistan. We have a historical relationship between our peoples that is the bedrock of our ties. Our cooperation covers development projects, humanitarian assistance, capacity building, and sports. India remains sensitive to the needs and aspirations of the Afghan people. The SCO extended family shares a commitment to reform the current international order. This is only possible when those efforts extend to the United Nations and the Security Council. We hope that in the near future, we can develop a strong consensus on the way ahead. Excellencies, India has contributed significantly to enhancing the economic agenda of the SCO. We have institutionalized mechanisms like the SCO Startup Forum and the Special Working Group on Startup and Innovation. With 130,000 startups in India, including 100 unicorns, our experience can be useful for others. When it comes to medical and wellness tourism, you may be aware that the WHO has set up a global center for traditional medicine in Gujarat. In SCO, India has taken the initiative for a new SCO working group on traditional medicine. Enhancing education, training, and capacity building are key pillars of India's cooperation. We are committed to further building on them, be it with C5 partners of Central Asia or those of the Neighborhood First or the Extended Neighborhood. Excellencies, as more countries seek association with SCO as observers and dialogue partners, we must strive to communicate better and deeper so that our consensus is also stronger. Granting English the status of a third official language will be crucial in that regard. We congratulate the Kazakh side for hosting the successful summit. As Vishwa Bandhu, or the friend of the world, India will always strive to deepen cooperation with all its partners. We also extend our best wishes for the success of the upcoming Chinese presidency of the SCO. This concludes the remarks of Prime Minister Modi. I thank you for your attention. पीएम मोदी असल में अपनी कुछ मसरूफियात में बिजी थे, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो खुद यहाँ नहीं आ पाए और यहाँ जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर का ही काम है, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए तो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर की ही सबसे इम्पॉर्टेंट जगह बनती है बिल्कुल आफ्टर पीएम जो है, क्योंकि वही फॉरेन मामला को डील कर रहा है। उसको बिठाया ही उस सीट पे इसलिए होता है कि वो इस तरह के मामला को डील करेगा जिस तरह ये SCO समिट जो हुआ है। तो ऐसी समिट में जो काफ़ी सारी बातें की हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव के हवाले से, इंडिया ने जो अपनी बात सामने रखी है दुनिया के आगे, उसमें एक बात की टेररिज्म वाली भी थी। टेररिज्म वाली यानी कि दहशत गर्दी वाली, जो कि अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। ऐसे शंकर नाम लेके तो नहीं इसलिए बुलाते, या इंडिया अक्सर जो है नाम लेके नहीं बुलाता, थोड़ा डिप्लोमेसी इसी को बोलते हैं कि हम किसी को जानबूझ करके अपनी ज़बान से खुद मसला ना खड़ा कर दें, हम उसको टैकल करें तरीके के साथ, ताकि वही चीज़ जो कि आराम से हल हो सकती थी हमारे इस तरह बोलने से वो खुद बड़ी हो गई है। अगर हम इस तरह ना बोलते तो ये हमें इसको कम लेवल पे जाके, कम डिग्री पे जाके डील करना पड़ना था। लेकिन अब क्योंकि हमने स्पेशली नाम ले लिया तो अब हमें इसको हायर डिग्री लेवल पे जाके डील करना पड़ेगा। तो वो अपने लिए खुद कांटे पिछाने वाली बात है। तो इंडिया इस चीज़ में बड़ा स्मार्ट है, हमेशा इंडिया ऐसे ही करता है। बहुत कम ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बन जाए तो फिर इंडिया जो है पाकिस्तान का नाम लेता है, और पाकिस्तान हर दूसरी बात पे जो है वो भारत का नाम लेके पब्लिकली जाके, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, डिप्लोमेसी वाले टैक्टिक्स लगा के भी, या उसके अलावा भी बहुत सारे जो तरीक़ेकार होते हैं जियो पॉलिटिक्स में प्ले करने के, उस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उनको इस बारे में पता ही नहीं है। वैसे पाकिस्तानी को तो लीडरशिप भी नहीं कहना चाहिए उस तरह, लीडरशिप तो लफ्ज़ की भी तौहीन होती है, वो तो पूरा एक लीड करने वाले लोग होते हैं ना, तो यहाँ तो उस तरह का हिसाब ही नहीं है। तो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से भी बात की, जिसमें कि यहाँ पे आते हैं इसलिए कि हम पैसा कमाएंगे और बाहर ले जाएंगे, बच्चों की याशी कराएंगे। हाँ, तो इनका इनडायरेक्टली इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था कि पूरी दुनिया खुद ही समझेगी कहाँ कहाँ से टेररिज्म हो रही है। तो पाकिस्तान से जो है जिस तरह अब कौन सी टेररिज्म कर दी भाई, अब कौन सी कर नहीं दी चीज़ें, जो रियासी अटैक हुआ है पीछे, जो सारी चीज़ें हुई उसमें जो प्रूफ्स मिले हैं उसमें भी ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखना, छोटी सी बात है, मैं एग्जांपल देता हूँ। भारत कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है,
पाकिस्तान कहता है कि भारत ये बात इसलिए करता है क्योंकि हम उनके दुश्मन हैं। चलो हम पाकिस्तान का पॉइंट हटा देते हैं, भारत का भी हम उठा देते हैं, हम थर्ड पार्टी को ले आते हैं, कोई कंट्री का हम उठा लेते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे लोग, अगर कोई कंट्री बोलता है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका भी अगर बोलता है कि यार नहीं पाकिस्तान वाकई में दहशतगर्दी करता है, तो हम इस स्टैंडर्ड को भी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं कि चलो यार वो भी तो एक कंट्री है ना, वो भी अपने मुफाद के लिए देखेगा, वो भी अपनी सारी चीज़ों को सामने रख के करेगा। अब हम कंट्री से भी ऊपर आ जाते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन को। पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द इंडिया बताता है वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ही हैं, उसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अब जो UN है उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ जो UN अपनी मर्ज़ी से कर लेता है, वहाँ प्रॉपर वोटिंग होती है, प्रॉपर उसके ऊपर वीटो पावर्स होती हैं, हर चीज़ होती है। तो उसके ऊपर मेजॉरिटी कंट्री का इत्तेफाक है, जैसे हाफिज़ सईद की बात है या इस तरह और भी बहुत सारी शख्सियात हैं। मतलब तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कोई, अगर इंडिया ने कोई क्लेम किया है इस बात को कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो वो UN में जाके बैठ के प्रॉपर मीटिंग होगी, और मीटिंग में मतलब मीटिंग से मतलब वोटिंग होगी, और वोटिंग में कंट्रीज़ के दरमियान में होगी। हाँ, अगर एक किसी चीज़ के ऊपर होती है ना तो कंट्री ज़ाहिर है UN में तो मेंबर्स तो कंट्रीज़ ही है ना, तो कंट्रीज़ में कुछ जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो वो अगर एग्री कर जाती है। अब अगर यहाँ पे हम वैसे इंडिविजुअल बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, उसको हटा दें, तो यहाँ पे भी तो वो कंट्रीज ही आ रही है ना। यहाँ ज़्यादा कंट्री होगी ना, एक कंट्री नहीं है, वहाँ सबकी वोटिंग के साथ डिसाइड होगा। अमेरिका वाले केस में तो सिर्फ एक कंट्री डिसाइड कर रहा है ना, जो अभी एग्जांपल हमने दी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ जाएंगे UN के पास, तो वहाँ जब UN की वैसे मैं इस बात का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान इस तरह की करतूत करता नहीं है, करता है बिल्कुल, लेकिन ये है कि बस कह लें कि हजम नहीं होती ये बात, मतलब कि बुरी लगती है ये बात, बुरी लगती है। हाँ, बिल्कुल, तो वो बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह अब हम लोग देखें ना यार, हमारे आसपास की कंट्रीज़ कितना ग्रो कर रहे हैं, अभी भी हम लोग वहीं पे फंसे हुए हैं। हम लोग अब देख, हमारे जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे, देख के बंदे को लगता है कि अच्छा चलो ठीक है पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है, बेहतरी की क्या बात है। अब देखना जिस तरह उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात की कि ये नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बेहतरी की बात है, या ये कहना बेहतरी की बात है, नहीं नहीं ये तो होनी चाहिए, बेहतरी की बात है। इसी तरह जो उन्होंने अपने कंट्रीज़ के साथ नेबर फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से बताया कि हम लोग उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं हमेशा। अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर भी उन्होंने एग्जांपल दी कि हम इस तरह उनके जो लोग हैं या अफ़गानी लोग हैं उनके लिए भी हम लोग उनके लिए खड़े हैं हेल्प के लिए। तो इस तरह काफ़ी सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए बेहतरी की बात। यानी कोई इवेंट हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई समिट हुआ है, जैसे SCO वाला समिट हुआ है, तो इसमें कोई भी समिट होगा, इंडिया से भरपूर फ़ायदा उठा के बेहतरी की बात करेगा, इंडिया उससे फ़ायदा उठा के बेहतरी की बात करेगा। लेकिन हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग नहीं करेंगे वो काम जिससे कि अगर हमने वो स्पीच ना दी होती तो क्या होता, और हमने दी होती तो कोई फ़र्क होता। हम दें या ना दें स्पीच एक बराबर हो जाती है। इंडिया जब स्पीच देता है या नहीं देता तो किसी चीज़ पे दोबारा जोर पड़ता है, और वो उस चीज़ पे पड़ता है जो वाकई में एक्चुअल जेन्युइन चीज़ है जिसके ऊपर पढ़ना भी चाहिए। अगर लास्ट टाइम जैसे इंडिया अक्सर बात करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर, हर बड़े समिट में बात करता है, मेजॉरिटी टाइम से आता है, लेकिन वो एक्चुअल चीज़ जेन्युइन चीज़ है जिसके ऊपर बात होनी भी चाहिए, तो बात समझ में भी आती है। किसी बेतुकी की बात के ऊपर अगर हम हर वक्त जोर लगा के बैठे रहें, जैसे कश्मीर का मामला इंडिया के साथ भी तो है ना। हाँ यार, आप तो मैं कश्मीर का नाम कश्मीर का मामला इंडिया के लिए भी था, इंडिया का वैसे ही मैं पहले इसको बड़ा और नजर से देखता था ना, ये कश्मीर वाला ये वो। मैं भी पाकिस्तानी सोसाइटी का एक बंदा हूँ, तो मैं याद आया इस बात से। तो वो इसी तरह करते हैं कि हम भी पहले इस तरह जज्बाती होते थे कि यार अच्छा कश्मीर में बात है, वहाँ के मुसलमानों में बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन अब जब कश्मीर की बात आती है तो अब लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा वाली बात है। रिएक्शन आ गया तो बात सारी समझ आ गई, जिस तरह कश्मीर के नाम, जैसे कश्मीर का नाम अभी जब मार्केट में था ना, जब नई नई वीडियो देख रहे थे ना कश्मीर की में, तो मैंने पूछा मार्केट में वहाँ लोगों थे ना, आगे वहाँ लोगों से पूछा, तो सारे ये कहते हैं कि नहीं इंडिया जुल्म करता है पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर, उनके अवाम के ऊपर। और वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जुल्म होता है इस बात पे कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, वो कहते हैं कि नहीं जाना। ये बड़ा जुल्म है जाना नहीं जाना, चलो उनकी बात मान लेते हैं। ये बड़ा जुल्म है जाना नहीं जाना, ये बड़ा जुल्म है कि उनको आटा भी जो है वो सही कीमत पे नहीं देना और उनको मुश्किल हो, गंदम भी उनको सही से नहीं देनी, ये बड़ा जुल्म है। ये बड़ा जुल्म है, मान लेते हैं उनकी बात, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, सब कुछ जो भी है 2 मिनट के लिए हम ये तो एक बात बोली ना मैंने, बड़ी बातें हैं। हाँ, तो इस तरह बड़ा जुल्म कौन सा है कि उनको सर्वाइवल के लिए भी नहीं मिल रहा कुछ, या ये है कि अच्छा वहाँ एक्सप्लेन कर ले बंदा, बात कर ले कि वहाँ आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, गंदम मिल रही है सही से मिल रही है ना वहाँ पे, वहाँ आटे के रेट अगर हम नेट पे निकालेंगे हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में कश्मीर में जो आटे के रेट है या गंदम की जो प्राइसेस हैं, गंदम की अवेलेबिलिटी है वो भी बड़ी आराम से मिलेगी। तो जिसको सर्वाइवल के लिए ही इतने बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, जुल्म ज़्यादा बड़ा वो है कि अब ऑप्शन मिल गया, पेट भर गया, अब मैंने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, वो तो सेकंड नंबर पे बात आती है। पहले तो आती है ना कि बंदा जिंदा तो कम से कम रहे, बंदा सुकून से तो रह सके। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अटैक पहले इंडिया ने किया और ऐसे वैसे ये वो सारा कुछ,
मैंने कहा ठीक है यार। वैसे कितनी स्मार्टनेस है और कितना हैवी लेवल है कि जिस बंदे ने ये बात बताई है कि आप देख, और नहीं मतलब कहना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि किसी ने बताई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने एक बंदे के जाके कान में ये बात बता दी कि इस तरह हो रहा है, बस ये मेगा इवेंट्स कर करके हमने ये किया शुरुआत से। और हमने ये जो बड़े इवेंट करते हैं जाके हम अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए करते हैं। दुनिया की तरफ से हम लोग जो जिस नज़र से मर्जी देखे जाएँ इस बात करने के बाद, लेकिन हमारी आवाम जब वो वीडियो देखेगी या हमारे जब बैठ के आपस में लगेंगी या हमारी जब मीडिया उसके ऊपर, फिर हम पूरी मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये डिस्कशन करवाने के लिए ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं कि इसके ऊपर बात करनी है, तो वो आम आदमी जो घर पर बैठा टीवी चाय पी रहा है या घर वाले के साथ बैठा है या बैठक लगी है, उनको बोलेंगे वाह यार कमाल कर दिया, पूरी वॉशिंग वहाँ से हो रही है प्रॉपर। पहले वहाँ जाके बात करनी है, फिर उसको कवर करने के लिए पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रॉपर फंड करना है और फिर आवाम का जो है वो वॉशिंग करनी है पूरी तरीके से। तो ये देखें ना, अब इंडिया का और हमारे डिफरेंस यही है, कंपैरिजन हम उस तरह कर ही रहे हैं, लेकिन ये मैं लगा था आप समझ गए मेरी बात। वो जब कोई किसी समिट में जाते हैं तो उस समिट के होने से फ़र्क पड़ता है कि अच्छा ये समिट हुआ है तो इससे ये बेहतरी की बात हुई है, एक बात है उसके ऊपर दोबारा से बेहतरी की बात हुई है। अब जब हम जाते हैं उस समिट में तो वो होना और ना होना एक बराबर हो जाता है, बस हमारा खर्चा आ जाता है कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो एक हमारा एक्स्ट्रा फंड ही लगते हैं। मतलब इसका मतलब उल्टा हमारा नुकसान ही होता है उस समिट में जाने से, यार हमारे फंड कम हो जाते हैं पाकिस्तान को निकाल, क्योंकि हमने उसमें से कुछ एक्सपेक्ट जब करना ही नहीं है, कुछ उसमें से निकालना ही नहीं है जिससे फ़ायदा हो सके, तो फिर हमारा जाने का फ़ायदा फिर तो हमारा नुकसान ही है ना। क्योंकि ऐसी बात तो ऐसी ही है, लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है यार। इसको मैं तो कहता हूँ इस टॉपिक को ही रहने दिया करें, ये बड़ा ना डिस्कस हम करें ताकि हमें पता चले, हमें वो बात सही है, लेकिन एक उधर है कि बंदा यार अपने एक मुल्क है या एक जिसके अंदर बंदा रह रहा है, घर है, जब तक वहाँ का माहौल या वहाँ की चीज़ें सही नहीं होंगी तो बंदा किस तरह रहेगा। बंदा ये चीज़ों को देखता है ना कि यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, इसका कोई मकसद होता है कोई चीज़ का। ये तो संडे के आगे फिर जाने वाली बात है कि ठीक है बस जो लगा है, कोई रिसर्च नहीं, कोई उस पर कोई बात नहीं, बस ठीक है जो हो रहा है मोस्ट वेलकम, और जो नहीं हो रहा उसके लिए तो पहली वेलकम है ना। तो हमारा ये ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी बताना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हिंदुस्तान टाइम्स के अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।